پتنگ بازی کے شوقین افراد کے لیے بڑی خبر ہے۔ بسنت اب اندرون لاہور تک محدود نہیں رہے گی۔ محفوظ بسنت منانے کے لیے اندرون کے ساتھ ساتھ مزید علاقے بھی تجویز کیے گئے ہیں۔ بسنت کے لیے واؤ سٹی، ریس کورس، ماڈل ٹاؤن، جلو پارک کے نام تجویز کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پی سی ہوٹل، اواری ہوٹل اور فلیٹیز ہوٹل کی چھتوں پر بھی پتنگ بازی کی اجازت دی گئی ہے۔ حکومت کا پتنگ بازی کے لیے قانون میں ترامیم کا نیا ڈرافٹ تیار کیا گیا۔ ترمیم شدہ ڈرافٹ کے مطابق پتنگ بنانے والوں کی رجسٹریشن لازمی ہوگی۔ مزید اس حوالے سے ڈیٹیلز جان لیں گے، علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ لاہور میں بسنت کے تہوار کے لیے جو ایک قانون تھا 2001 کا، اس میں کچھ ترامیم کر کے اب نیا ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، حکومت پنجاب کو بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں نئے ڈرافٹ میں جو پہلے چیزیں بتائی جا رہی تھی، ریکمنڈیشنز تھیں، انہی کو ایڈ کیا گیا ہے کہ دھاتی جو ڈور ہے وہ استعمال نہیں کی جائے گی، بڑی پتنگیں جو ہے وہ استعمال نہیں کی جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی جو نئی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ جو کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن ہے، ان کی رجسٹریشن کے لیے 50,000 روپے فیس وہ حکومت جو ہے وہ مقرر کرنے جا رہی ہے، اور ساتھ جتنے بھی مینوفیکچر ہیں یعنی کہ پتنگ اور ڈور بنانے والے، ان سے بھی رجسٹریشن فیس جو ہے وہ لی جائے گی۔ اب اس کے لیے کیونکہ جو ریکمنڈیشنز تھی وہ یہی تھی کہ اب مینوفیکچررز اور کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن جو ہے ان کو حکومت کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے حکومت ایک لائسنس ان کو جاری کرے گی، سرٹیفکیٹ دے گی، اور وہ سرٹیفکیٹ کے بنا جو ہے وہ یہ ڈور اور پتنگ وہ فروخت نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے وہ ترامیم جو ہے وہ ایڈ کر دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی حکومت نے ڈپٹی کمشنر لاہور نے مختلف جو مقامات ہیں، لوکیشنز وہ نئی آئیڈینٹیفائی کی ہیں بسنت کے تہوار کے حوالے سے۔ پہلے تو اندرون لاہور کی سفارشات دی گئی تھی کہ اندرون لاہور کے اندر یہ تہوار منایا جائے گا ہفتے اور اتوار کے روز، لیکن اب کچھ نئے نام جو ہے وہ سامنے ہیں، اور اس میں ماڈل ٹاؤن پارک جو ہے وہ بھی اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ریس کورس جلانی پارک کا ذکر کیا گیا ہے۔ جلو پارک میں وہاں پہ بھی تہوار منانے کی سفارشات جو ہے وہ کی گئی ہیں، اور گلشن اقبال پارک، اور ساتھ ہی پی سی ہوٹل، فلیٹیوز جو اواری ہوٹلز ہیں، ان کی چھتوں پر بھی تہوار منانے کی اجازت جو ہے وہ اس کی تجویز دی گئی ہے کہ وہاں پر بھی اجازت دی جائے تاکہ وہاں پر بھی شہری یہاں پر بسنت کا تہوار جو ہے وہ منا سکے۔ تو پہلے صرف اندرون لاہور تک محدود تھی، اب مزید جگہوں کی نشاندہی کر لی گئی اور اب نئی سفارشات حکومت کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ اب اس پر جلد اسمبلی سے اس کی باقاعدہ منظوری جو ہے وہ لی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کابینہ سے تھرو اسمبلی سرکولیشن اس کی منظوری لے لی جائے۔ تو بسنت کے تہوار سے حوالے سے یہ ایک نئی پیشہ سامنے آئی تھی کہ اس میں رجسٹریشن کے حوالے سے فیسیں مقرر کی گئی، اور ساتھ جزا اور سزا جو ہے وہ لازمی ہوگی کہ اگر جو دھاتی ڈور فروخت کرے گا یا بڑی پتنگیں فروخت کرے گا، ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 میں واسا کا 98% کام مکمل۔ محکمہ ہاؤسنگ کے زیر انتظام واسا نے سیوریج نظام اور واٹر سپلائی لائنز پر کام کیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کے تحت 365 انڈیپینڈنٹ گلیوں پر کام مکمل کر لیا گیا۔ 1573 ڈیپینڈنٹ گلیوں میں سے 1404 مکمل ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیں گے دورے نیاب سے، جی بتائیے گا۔ واسا نے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جو سیوریج سسٹم تبدیل کرنا تھا اور ایسی جگہوں پہ بھی سیوریج ڈالنا تھا جہاں پہ پہلے سیوریج موجود نہیں ہے، اس کا 80% کام مکمل کر چکا ہے، اور ڈیٹا کے مطابق واسا کی جانب سے 365 انڈیپینڈنٹ گلیوں پہ یہ کام مکمل کیا گیا ہے، اور یہ وہ علاقے تھے، ڈپرائیو علاقے تھے، جہاں پہ پہلے یا تو سیوریج سسٹم تھا ہی نہیں، یہاں پہ نالی سسٹم چل رہا تھا، اور اسی طرح یہاں پہ پراپر ڈرین سسٹم نہ ہونے سے بارشوں کے دنوں میں یا نکاسی آپ کی کسی ٹیکنیکل صورتحال پہ بہت بری اور مشکل پیدا ہو جاتی تھی اور نکاسی نہیں ہو پاتی تھی۔ اس میں اب 1573 جو ڈیپینڈنٹ گلیوں میں سے 1404 گلیاں جو ہیں مکمل کی گئی ہیں، 169 گلیاں جو ہیں وہ ابھی ان کا ویٹنگ کا عمل جاری ہے۔ اسی طرح ایل ڈی پی کے فیز 2 پہ بھی کام شروع کر دیا گیا ہے، اور سیوریج نظام اور واٹر سپلائی کی تنصیب بھی شروع کر دی گئی ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کے تحت 290 کلومیٹر کا سیور بچھایا جائے گا اور 310 کلومیٹر کی واٹر سپلائی لائن بچھائی جائے گی، جس کے بعد یہ سیور واٹر سپلائی لائن کا ایک بہترین کمپوننٹ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تمام ترقیاتی کام مکمل ہونے۔ بہت شکریہ دور نیاب۔ پنجاب کابینہ نے اسپیشل پلاننگ اتھارٹی کے فنڈز منظور کر لیے۔ پنجاب کابینہ نے اتھارٹی کے قیام کے لیے 30 کروڑ بجٹ منظور کیا۔ اتھارٹی پنجاب میں ماسٹر پلاننگ کا کام سر انجام دے گی، سڑکیں، سیوریج، اسٹریٹ لائٹس، ہاؤسنگ کے معاملات کی نگرانی بھی کرے گی۔ تو پنجاب کابینہ نے اسپیشل پلاننگ اتھارٹی کے لیے فنڈز منظور کیے ہیں۔ پنجاب کابینہ نے اتھارٹی کے قیام کے لیے 30 کروڑ کا بجٹ منظور کیا ہے۔ اتھارٹی پنجاب میں ماسٹر پلاننگ کا کام سر انجام دے گی اور سڑکیں، سیوریج، اسٹریٹ لائٹس، ہاؤسنگ کے معاملات کی بھی نگرانی کرے گی۔ الیکشن کمیشن کا پنجاب میں نئے بلدیاتی ایکٹ کے تحت الیکشن کرانے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے نیا بلدیاتی ایکٹ الیکشن کمیشن کو ارسال کر دیا ہے۔
इलेक्शन कमीशन हदबंदियां और हल्का बंदियां नए एक्ट के तहत करेगा। जराये के मुताबिक ये बताया गया है नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 का गजेट नोटिफिकेशन आज जारी होगा। मजीद डिटेल्स जान लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से, बताइएगा। नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 का गजट नोटिफिकेशन आज जारी होगा। इस एक्ट के तहत जो है बलदियाती इदारों के मुकाबले में जो बलदियाती नुमाइंदे हैं उनके मुकाबले में ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा अख्तियारात मिल गए हैं और हर जो बलदियाती जो इदारे हैं उनमें एक लोकल गवर्नमेंट जो एक्ट है उसके अंदर एक लोकल गवर्नमेंट कमीशन कैंप बनेगा। उस कमीशन का जो सेक्रेटरी होगा वो सेक्रेटरी बल्दियात होगा और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान की तमाम किस्म की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट करेगा। हायरिंग और फायरिंग जो है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट करेगा। जबकि एक फाइनेंस कमीशन बनेगा जिसका सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी खजाना होगा और लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो बलदियाती इदारों को जो बजट है वो सेक्रेटरी खजाना देगा। जबकि इंतजामी मामला जो है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बलदियाती इदारों के देखेगा। जबकि एसी डीसी और कमिश्नर की सरबराही में कमेटियां बनेगी और जो जिले और डिवीजन की सतह पर कमेटियां बनेगी जो यूनियन काउंसिल और टाउन और म्यूनिसिपल कमेटियां और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तादाद का तयन करेगी और इलेक्शन कमीशन इनकी हाथबंदियां करेगा और रेवेन्यू स्टेट जो होगी रेवेन्यू का इलाका पूरा रेवेन्यू। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। अपोजिशन के तमाम अरकान पंजाब असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो गए। अपोजिशन के अरकान के इस्तीफे स्पीकर पंजाब असम्बली ऑफिस को वसूल हो गए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ताहाल किसी भी अपोजिशन रहनुमा का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, जबकि मुस्ताफी होने के बावजूद अपोजिशन अरकान असम्बली सरकारी गाड़ियों पर काबिज हैं। सिर्फ 2 चेयरमैन ने मुस्ताफी होने के बाद गाड़ी असम्बली सेक्रेटेरिएट को वापस की। हाफिज फरहत अब्बास और अवैस उमर विर्क ने सरकारी गाड़ियां वापस की हैं, जबकि हाफिज फरहत अब्बास और अवैस उमर विर्क ने गाड़ियां वापस नहीं की हैं। कई अरकान इस्तीफे बैरून मुल्क से व्हाट्सएप किए। बाज़ अरकान असम्बली ने इस्तीफे स्पीकर पंजाब असम्बली को जमा कराए। तो बताएं आपको कि अपोजिशन के तमाम अरकान पंजाब असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो गए, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने ताहाल किसी भी अपोजिशन रहनुमा का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। गाड़ियों की नंबर प्लेट ओनरशिप के तरीक़ेकार को आसान बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का मोटर व्हीकल्स रूल्स 1996 में तरमीम करने का फैसला। मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से, बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ओनरशिप के मामलात को आसान बनाने का फ़ैसला किया। इस हवाले से आपको बताएं कि मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरामीम का फ़ैसला कर लिया गया है। जो ही ये फ़ैसला हुआ, प्रपोज़ल तैयार की गई तो वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने भी इन तरामीम की बाकायदा जो है वो मंजूरी दे दी। आपके बताएं कि तरमीम के तहत अब गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन मार्क है अब ऑनर जो है वो मालिक की शनाख्त से मंसूब होगा। इसी तरह से तरामीम का मकसद गाड़ियों की मलकियत और इंतकाल मलकियत के निज़ाम को शफाफ बनाना है, जबकि रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अब मालिक के रिकॉर्ड से मुंसलिक होगी। आपको बताएं कि नई तरमीम से गाड़ियों की खरीदो फरोख्त और जालसाजी का जो अंसर था इसमें वो ख़त्म हो सकेगा, जबकि नई तरमीम से मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा को नादरा के साथ मुंसलिक किया जा सकेगा। तरमीम से कानून नाफिज करने वाले इदारों को गाड़ियों से मुतल्लिक मालूमात फौरी दस्तयाब हो सके। अब यहाँ आपको बताएं कि शहर लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है और मजमूई शरह 238 रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। गुलबर्ग ब्लॉक के 399 फेज़ ए DHA में शरह 343 रिकॉर्ड की गई है, जबकि बादलों और सूरज के माबैन आंख मचोली का सिलसिला जारी है। कैसा मौसम है, स्मॉग की क्या सूरत हाल है, डिटेल्स जानेंगे फरीहा से। जी फरीहा। जी बिल्कुल, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर में बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी है। कभी बादल आ जाते हैं तो कभी हल्की हल्की धूप हो जाती है। मौसम में ज़रा सी तब्दीली आई है। ऐसे ही जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो अपने अरूज पर पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त पे आज नंबर 2 पर है। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 238 रिकॉर्ड की जा रही है, जो बच्चों और सीनियर सिटीज़न
बदन के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह मुख्तलिफ है। गुलबर्ग ब्लॉक ए में 399 रिकॉर्ड की जा रही है, DHA फेज़ 8 में 343, मॉडल टाउन में 314, इलामा इकबाल टाउन में 298, जबकि जौहर टाउन में 276 रिकॉर्ड की जा रही है। सुबह के औकात में ख़ास तौर पे 7 से 9 बजे जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अपने अरूज पर होती है, क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक का दबाव भी ज़्यादा होता है। बच्चे स्कूल जाने का औकात होते हैं और साथ ही मुलाजमीन के दफ्तर जाने के औकात होते हैं, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो कमी देखने को नज़र आएगी, उनका कहना है। जबकि 4 बजे से शाम 7 बजे तक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दोबारा जो है वो सर उठाने लगती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो बढ़ाव का जो है वजह वो ट्रैफिक का दबाव हो सकता है, या तो जो है वो दर्जा हरारत में तब्दीली के हवाले से हो सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवा हफ्ता जो है बारिश के कोई इम्कानात नहीं बताए जा रहे, जबकि अगर बारिश हो जाती है तो शहर की हवा जो है वो आलूदगी से बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में छाए स्मॉग के बादल हमसाया मुल्क भारत से आए हैं या हमारी कोताही का शाखसाना है? मारूफ माहिर माहौलियात सारा आसिफ से हमारे नुमाइंदे आमिर रजा ने इस हवाले से बात की, आपको दिखाते हैं। स्मोग बन गया रोग। लाहौर के शहरी इस वक्त परेशान हैं कि स्मोग आ गई है, किसी का गला ख़राब है, किसी का नाक, किसी की आंखें दर्द कर रही हैं और लोग कह रहे हैं कि सब कुछ स्मोग की वजह से है, लेकिन ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि ये सब कुछ भारत की वजह से है। हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट हैं इस वक्त मौजूद सारा आसिफ, इनसे बात करते हैं। हम ऐसे जोग्राफिकल रीजन में हैं जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब नेबर्स हैं, तो जब भी कुछ नेबरिंग कंट्री में होता है उसका इम्पैक्ट हमारे जो डाउन स्ट्रीम लोग होते हैं उन पे होता है। अभी हमने फ्लड्स के केस में भी देखा, तो अगर वहाँ पे कोई पटाखे होंगे तो डेफिनेटली धुआं है, इट हैज़ टू ट्रैवल, तो यहाँ भी पहुँचेगा। मगर हम इस पर कम्प्लीटली उनको ब्लेम नहीं कर सकते, हमें अपने भी इन हाउस कुछ ना कुछ इंटरवेंशंस करनी चाहिए ताकि हम उसको कर्टेल कर सकें। और आई थिंक हमारे नेबर्स को हमें बिठाना चाहिए एक टेबल के ऊपर, वेयर वी कैन टॉक अबाउट इट, और हम इसको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस इशू को सॉर्ट कर सकें। जितनी हेल्थ उधर लोगों की इफेक्ट हो रही है उतनी ही हमारी भी हो रही है। अच्छा सारा, ये बताइएगा कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, यानी हमें कौन से मेजर्स उठाने चाहिए कि यहाँ पर स्मोक कम से कम हो? जी, सबसे पहले तो आप अपने इर्द गिर्द देखें कि अगर आपकी व्हीकुलर एमिशंस हैं उनको कंट्रोल करें। अपनी गाड़ियों के धुओं को आप देखें कि काला धुआं तो नहीं छोड़ रही। अभी बड़ा अच्छा एक सिस्टम हमारे पास पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने किया है, जिसमें दे आर चेकिंग योर कार्स, देयर इंजन की हेल्थ चेक हो रही है, आपको कार्बन एमिशंस के अगेंस्ट एक स्टिकर मिल रहा है, तो मेक श्योर कि आपने वो स्टिकर लगवाया है। आई थिंक इनिशियली इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, अब शायद कोई 500 रुपये लगते हैं, शायद 300 रुपीज़, आई थिंक विच इज़ नथिंग। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गेट योर कार्स इंजन्स टेस्टेड। अपने आप को देखें, यहाँ पर ऐसे दरख्त लगाएं जो देसी हैं। हमें ऐसे दरख्त नहीं लगाने चाहिए जो बाहर से आए हैं, जैसे पाम ट्री है, वो यहाँ का दरख्त नहीं है लेकिन यहाँ पर लगाया जाता है। पाइन पहाड़ी इलाकों का दरख्त है, लेकिन यहाँ सोलर सिस्टम से मंजूर शुदा से ज़ायद बिजली की पैदावार करने का इंकशाफ। मंजूर शुदा लोड के बरक्स बिजली की पैदावार करने वालों को लाइसेंस मनसूखी के नोटिस जारी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा हैं। जी शाहिद सिपरा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सोलर सिस्टम से खिलाफ ज़ाब्ता बिजली की पैदावार करने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद लेस्को ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले सार्फिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने का फैसला किया है। ज़रा ये बताया है कि नेपरा ने और लेस्को ने सार्फिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके साथ साथ बिजली की पैदावार करने की इजाज़त दी, और साथ में जो कवानीन रखे गए उसके मुताबिक सोलर सिस्टम लगाने की इजाज़त दी गई। ताहम बहुत सारे ऐसे सार्फिन हैं जिनको नोटिस अरसाल किए गए हैं और इस बात की निशानदही की गई है कि जब उन्होंने लेस्को से के साथ मुआहदा किया या नेपरा से लाइसेंस लिया उस वक्त कवानीन के मुताबिक सोलर सिस्टम लगाया गया था, लेकिन बाद अज़ाम सोलर पैनल्स की तादाद बढ़ाई गई और तादाद बढ़ने की वजह से इजाफी बिजली की पैदावार शुरू की गई। और अब लेस्को की जानिब से जो मीटर की रीडिंग्स हैं इसमें MDI यानी कि मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर उसके। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिपरा। तालीमी इदारों में दाखिलों की शरह कम हो गई है। यूनिवर्सिटियों के निसाब में स्किल्ड एजुकेशन शामिल करने का हुक्म जारी किया गया। इस हवाले से बात कर लेते हैं इमरान यूनुस से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, रवा साल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो दाखिलों की शरह है वो बहुत कम रिकॉर्ड की गई है, और जिसकी वजह तलबा के मुताबिक ये बयान की जाती है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में रस्मी तालीम दी जा रही है वो मार्केट जॉब से मुताबिकत नहीं रखती, इसलिए तलबा तलबात का रुझान तालीमी इदारों की तरफ कम रहा है। इस सूरत हाल का नोटिस लेते हुए हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को हिदायत जारी की गई है कि वो स्किल्ड एजुकेशन को
अपने निसाब में शामिल करें। तलबा तालिबात जो हैं उनको मार्केट के मुताबिक स्किल्ड एजुकेशन फराहम की जाए। और इसका नई पॉलिसी जो है इसका मकसद जो है वो तलबा को मुलाजमत के लिए तैयार महारतें जो हैं वो फराहम करना है। और जो सर्टिफिकेशन कराए जाएंगे, जो निसाब में तब्दीलियाँ की गई हैं उसमें कंप्यूटिंग, IT, हेल्थ केयर, इसी तरह कंस्ट्रक्शन, हाईटेक, डिजिटल इकोनॉमी और मालियाती इदारों समेत दीगर कोर्सेज जो हैं वो अपने निसाब में शामिल करने की हिदायत हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से जारी जी की ठीक गई। है, इमरान यूनस साहब का।